to the class. There is one link to mark the attendance, but I believe your name is not there as of now. But yes, I'll mark your attendance. So that's not an issue. Due to some technical fault, your name was not showing in that list. So that's why we could not add you just in the WhatsApp group, and other things we could not manage. So from today onwards, everything will be done. I'm apologize on behalf of the institution and whatever you have missed out, Koshika, you will be getting it through study material and the documents. And if you have any query related to any subject, you can please talk to your teacher, subject teacher, in that respect. And as of now, we are going to talk about business communication. So yes, I'm here to sort out your all the queries. You go through with the that document. I will share it today also. So we'll do that. So what I'm saying, you people have to mark your attendance now. Please go through with it. And simultaneously, I'm going to start this session now, class. Link is this. I don't know, Kushika, whether your name is available in this list or not, but I will mark the attendance. I know the things, right? We will manage at the back end. This is for Kushika only, yes. So Kushika, your attendance will be marked, you don't worry, if your name is not there. Fine enough. So let us start the class also. So I hope the PPT is visible to everyone. Okay, so yesterday we were talking about the types of communication. So any query before that, if you, any one of you having any query related to the past topics, you don't have to write your name here in the chat. You just mark your attendance in that link. Except Kushka, everyone's name is there, I hope. So you please mark your attendance there in that link. And before 11:30, complete it. Because I'm not going to mark the attendance for them who will mark the attendance after 11:30. But yes, those who will be joining late, they are most welcome in the online class, right? Fine enough. So please someone share that link again in the group. Yes, thank you, Varchas. So yes, so who is going to tell me about this types of communication? Let me know about formal communication first, and then we'll talk about informal communication. Yes. I have to take Ma'am, the name. Yes, please. ma'am, in Yes. formal organization, we have to follow some decorum and some rules and regulation needs to be followed to carry on the organization. Carry on the organization. Mm. I'm not asking the definition of formal organization. I'm asking the formal communication. On the basis of organizational structure, that is formal and informal, we have communication also formal and informal. So what do you understand by the term for formal communication? So who is going to tell me, please? मैम लिखना बेसिकली नहीं मैम है, इन बोलना है. Yes. मैम Who is मैम this? बेसिकली मैम इनफॉर्मल मैम तुषार मैम बेसिकली मैम फॉर्मल कम्युनिकेशन मैम ये होता है कि मैम एम्प्लॉयज में इंटरेक्ट कर सकते हैं और मतलब एक दूसरे से अपनी बातचीत कर सकते हैं और मैम इनफॉर्मल में ये होता है कि मतलब इसमें उनका अपना ग्रुप होता है इसमें कोई वो नहीं होता है कि मतलब जैसे मतलब ऑफिशियली नहीं होता इसमें आप चाहे तो अपने सोशल अपने साथ बातचीत भी कर सकते हैं और कुछ भी मतलब वो एंजॉयमेंट चाहिए सब चीज़ सब हो सकता है मैम इसमें सो मैम इट इज़ अ बेसिक डिफरेंस Okay. मैम कैन Anybody आई टेल else? राइट Ma'am, can I? You are quite, you have explained well, Tushar.
So Okay, whosoever ma'am. is Okay, going ma'am. to speak, please tell me your name first because मैम here I खुशी। have to see. Yes, Khushi, go ahead. मैम फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम इंफॉर्मेशन को ऑफिशियली इंटरचेंज करते हैं। उसमें एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ होता है कि जैसे हम मैनेजर और फॉरमैन के थ्रू ही हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो वर्कर के पास जाएगी, देन फॉरमैन, देन उसके बाद मैनेजर को जाएगी। बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो अनऑफिशियली ट्रांसफर होती है। Yeah, that's it. Okay, fine. Thank you, Khushi. So next I am Yes, going ma'am. to invite. Actually, I said that I will tell the name, then you have to speak. So Mukul Gupta. Mukul Gupta, Yes, ma'am. formal Ma'am, communication. Yes, ma'am, yes, go formal ahead. communication is the process in which communication flows through a particular way, whether it is from downwards or upwards or horizontally. Okay, But that's in great. informal communication, the information can spread in any direction, any through anyone, whether they are not linked. They are not linked And means the they of are not linked with the communication, but they are the part of that organization, right? yes, Fine. and Thank you. Thank formal you. Let me welcome, ask ma'am. from the other student also. So Kshitiz, can you Excuse me, describe ma'am. this? Can I Yes, say with something? yes, with this. Karan. Yes, मैम, यस Karan. मैम। मैम फॉर्मल जो होता है कम्युनिकेशन, इसमें तो मैम टास्क ओरिएंटेड होता है ये। Hmm. और Okay. मैम इनफॉर्मल जो है पीपल ओरिएंटेड होता है। Okay. और So मैम what do you mean by इसमें task oriented and people oriented? मैम टास्क ओरिएंटेड की हमें मैम कोई ना कोई हमें कुछ ना कुछ टास्क देगा, Hmm. मतलब हमें वो कंप्लीट करना होगा, Okay. क्योंकि इसमें And what do you रूल्स एंड mean by रेगुलेशन होते people हैं। oriented? मैम इसमें जो पीपल मतलब के जो मन होगा तब के कैसे। जब मन होगा तब बात कर लेंगे। हाँ, अपनी मर्जी हुई, मेरा मन किया किसी से बात करने का, चलो जी कुछ बात करते हैं, राइट? यस मैम, यस मैम। हाँ, इसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता, बट नहीं होता मे है बी मैम। पॉसिबल मैं उनसे पर्सनल बातें तो करने जाऊंगी नहीं, कुछ ना नहीं कुछ नहीं मैम। ऑफिस की बातें होंगी, यस तो मैम, वो ऑफिस का भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है ना? यस मैम, बट यस मे मैम, बी वो काम से रिलेटेड हो या ना भी हो, है ना? काम से यस रिलेटेड भी ओके। हो सकता है और एक्स्ट्रा भी हो सकता है, राइट? सो नेक्स्ट हु इज गोइंग टू स्पीक? गार्गी गुप्ता, प्लीज unmute yourself and let us know, throw some light on this formal and informal communication. Ma'am, formal communication is the verbal information that interchanges the information through channels, and it is a time consuming communication, and it also has a documentary evidence also involved. And in informal communication, it is a verbal information that interchanges the information and does not follow any channel, and it also saves time and cost of organization, and it does not involve any evidence. Okay, so you were saying that formal communication is verbal communication. Yes, So ma'am. what about written? अगर written में है तो वो formal communication नहीं है, rather written is more formal than verbal, नहीं? Yes. चलो कोई बात नहीं, इसको ऐड कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है? Okay, ma'am. And next one is Rishita. Rishita, please throw some light on that formal and informal communication. I know that many of the things are being repeated, but it's fine. We have to understand it. Rishita Robinson. Hello, Yes, please. can you hear me? Yeah. Go ahead. Good morning, ma'am. Good morning. Formal communication refers to means it is done in official manner and which follows the chain command. And ma'am, it is orderly followed and it is interacted in official way. And and what about informal communication? Informal communication is not done in official way and it is it transmits information rapidly and communication. That's it, ma'am.
Okay, fine. Okay. So who is next? Dev Bajaj, would you like to say something? Ma'am, formal communication involves formal communication involves channels through which communication is done, and informal communication does not involve any formal channels. Formal communication involves Formal communication does not involve rumors. Whereas informal communication may involve rumors, and spread of rumors is very fast. Whereas in formal communication, uh, spread is slow. Ma'am, I have a doubt. Your voice is breaking, Dev. I'm not hearing actually. Yes, yes. Ma'am, Who is this? Ma'am, am I audible? Who is this? Please ma'am, tell me your Karan, name. Karan, Karan. अच्छा देव, अभी एक सेकंड रुक जाओ, Okay. तुम्हारी बीच में आवाज चली गई Okay. थी, कोई बात नहीं. वेट अ मिनट. करण, टेल मी व्हाट यू आर हैविंग द डाउट. मैम कि ये जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन यस करण. स्लो मीन ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन मैं बताती हूँ. अभी अभी चलेंगे थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीजें. अभी तो हमने बस ऊपर से देख रहे हैं ना, कंटेंट तो पूरा ही देखना है. यस, आई विल टेल यू हाउ. ओके देन सम्यक इज देयर. Samyak is there. If you are, please unmute yourself and let us know. Samyak is there. Ma'am, Name मुझे show नहीं कर रहा है वैसे. He is not there, I believe. Yeah. Yes, who is this? ma'am Aditi, can I talk about हाँ, on Aditi, that बोलो. query, ma'am? Which Ma'am, in query? formal organization, ma'am, what is his name? I forgot. Ma'am, in Dev, formal Karan organization, said we have. something. Yes. Yes, ma'am. Ma'am, in formal organization, there is some process from which we have to undergo things. So Yes. that's why That's why it that takes may be time. the reason that formal communication takes time. True, very true. ओके अभी ओके मैं ओके थैंक आपको यू करण मैं समझाती हूँ. जैसे एडमिशन के टाइम पे आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो, है ना. हमारे पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर होता है. जब तक यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती, हम आपको नहीं बता सकते, ठीक है. तो क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो पब्लिसाइज यूनिवर्सिटी करे. कल को अगर मैंने समझाया और उसमें कुछ डिफरेंस आता है, तो आप तो यही कहते हैं ना कि मैम आपने भी तो कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी से अपडेटेड है, तो आपने कुछ ऐसे कैसे बोल दिया, है ना. तो हमें वही इंफॉर्मेशन देना है जो यूनिवर्सिटी कहती है. अब यूनिवर्सिटी ने अगर कुछ नोटिस बाद में निकाला और उसने कुछ चेंज कर दिया और मैंने जो कहा था वो गलत हो गया, है ना. मान लो मैंने कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे एडमिशन का करो तुम्हारा हो जाएगा, मान लो एक सेकंड के लिए, और आपने उसको फॉलो कर लिया और बाई चांस यूनिवर्सिटी ने अभी तक उसको नोटिफाई नहीं किया है, तो यूनिवर्सिटी के पास पूरी राइट है ना कि वो थोड़ा ऊपर नीचे कुछ भी कर सकती है ना. तो अगर ma'am. उस केस में यूनिवर्सिटी ने कुछ नोटिफाई किया और उसमें कुछ उसने क्लॉज लगा दिया, तो कुछ क्लॉज लगा दिया और मैंने विदाउट क्लॉज मैंने कह दिया आपको, तो मेरी बात तो गलत हो गई ना. तो जब तक यूनिवर्सिटी हमें कहे, या मान लो कुछ भी नहीं लगाती है, मैं तो अपनी को सेफर साइड में रखने के लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि मैं जब तक बातें नहीं बताती, जब तक यूनिवर्सिटी से डिस्क्लोज ना हो जाए या कॉलेज कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर देता, तब तक हम लोग टीचर्स, हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन बच्चों तक ना दें. रीजन होता है कि अगर हमने कह दिया एज ए टीचर, मान लो मैंने कुछ कहा, तो आप तो सोचोगे ना कि अरे सीमा मैम ने कहा है तो वो सही इन्फॉर्मेशन होगा, बट माइट बी पॉसिबल डायरेक्टर सर ने उसमें कुछ चेंज कर दिया, तो मेरी अपनी रिलायबिलिटी खत्म हो गई ना. कल को आप मेरे बात पे कहोगे अरे मैम ने तो कहा था लास्ट टाइम चेंज हो गया, तो मैं कितनी बार सफाई दूंगी कि भाई नहीं सर ने बाद में चेंज किया है ना. इट्स बेटर नॉट टू स्पीक. जो रियल इन्फॉर्मेशन है वही मैं शेयर करूं. तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है. लेकिन वही तुम अगर कुछ इनफॉर्मल मुझसे पूछो कि मैम इसमें क्या कैसे होगा, तो मैं कहूंगी ऐसा होता आया है, ऐसा हो सकता है, और कुछ भी होता है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ना. इसमें देखो होता क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप किसी को पकड़ सकते हो. आज ही अभी तुम्हारी क्लास के पहले मुझे IITM का एक बच्चा जो IITM में एडमिशन लिया हुआ है, उसका मुझे कॉल आया एंड ही वाज आस्किंग कि मैम मैं बाहर में हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजूं. जैसे आप लोगों से भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है कि हमें यूनिवर्सिटी भेजना है, राइट. तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास तक नहीं आएगा और यूनिवर्सिटी हम नहीं भेजेंगे तो कैसे होगा, राइट. तो कहने का ये सेंस है कि अगर मैंने कुछ आपसे कहा तो मुझे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के पार्ट में आएगा, इनफॉर्मल नहीं आएगा, ठीक है. जबकि आप इनफॉर्मल क्या हो जाता है, जहां पे आप कुछ भी आप बोल दो एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. अगर मैं आज कुछ बोलती हूँ इस क्लास के अंदर,
तो क्या होगा कि आप ये बोलोगे कि मैम ने कहा था, सीमा मैम ने कहा है, तो सीमा मैम ने कहा है तो सीमा मैम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कम्युनिकेशन, एनीथिंग विल हैपन एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट। जबकि अगर मैंने इनफॉर्मल वे में कहा है तो आई विल नॉट बी होल्ड फॉर दैट, नहीं मेरी कोई वो प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। आर यू गेटिंग इट? तो जो बच्चा था वो राजस्थान का है, तो ही आस्क्ड कि मैं क्या करूं। आप लोगों में बाय द वे अभी ये मैंने कह दिया है, तो अभी आप सबको दोबारा से याद दिला दूं कि आप सभी स्टूडेंट को जिसने पर्सनली यहाँ पे ऑनलाइन आई मीन रिपोर्ट नहीं किए हो, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगा गया है, जो आपने सबमिट अच्छा मैम, जिन्होंने सब पहले ही सब दे रखे हैं जो दिल्ली उनको एनसीआर में है, प्लीज इन पर्सन आकर के यहाँ पे सबमिट कीजिए। और एक मिनट बेटा, एक मिनट पहले मुझे फिनिश तो करने दो। और जो भी बाहर के हैं, रिश्ता हैं यहाँ पे सीधा, काफी बच्चे बाहर के हैं, तो आप लोग, दिव्यांशु भी शायद ज्वाइन किया था, दिखा था मुझे। जो भी बच्चे बाहर से हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अपनी ओरिजिनल कॉपी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और ये सारे जो फॉर्म्स भरना है वो सारे को फिलअप करके एक सेट अपने पास रख लीजिए, उसकी जेरॉक्स करा करके एक सेट मेल पे सुगंध मैम को भेज दीजिए, और दूसरी कॉपी जो है हार्ड कॉपी कुरियर के थ्रू, ताकि 1 से 2 दिन के मैक्सिमम, वैसे कल तक का है टाइम दिया हुआ, चलो 1 दिन एक्स्ट्रा भी होता है कोई दिक्कत नहीं, 7th भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर 7th तक किसी भी हालत में हमारे हाथ में आ जाए, सो दैट कि हमें 7th को ही भेजना है, तो हम लोग उस चीज को एटलीस्ट में यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट कर सके कि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। कुछ थोड़ा बहुत अगर एक आध बच्चे का डिले भी हुआ तो वी कैन सबमिट इट, लेकिन विदाउट ओरिजिनल कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट एंड व्हाट इज कॉल्ड दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो एन यूनिवर्सिटी हैज ऑल द राइट्स टू कैंसिल द एडमिशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो प्लीज अवॉइड दिस। आप लोग सारे एडमिटेड हो और कोई भी गलती हमारे एंड से ना हो, हमारे मीन्स यू पीपल एंड वी एज DSPSR, कोई भी गलती ना हो जिससे एडमिशन कैंसिल हो, ठीक है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग भेज दो। देखो ऑनलाइन रिपोर्टिंग मैंने करा दी थी, कोशिका की भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग हुई थी, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन रिपोर्टिंग किए हैं, बट इट्स ओके, वी हैव डन इट। लेकिन अब टाइम आ गया है जिसमें आपको डॉक्यूमेंट को सबमिट करना ही करना है। तो इफ आई एम सेइंग, इफ सुगंध मैम हैज सेड दैट टू डू, दैट इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन। पर ये चीज तो हम लोग पहले भी कह सकते थे, नहीं कहा, टाइम लगा। क्यों टाइम लगा? क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, ऑनलाइन भी कराया तो भी हमें डॉक्यूमेंट तो चाहिए ओरिजिनल ही। तो नाउ वी आर सेइंग कि आप इसको कुरियर से भेज दो, ठीक है, चाहे स्पीड पोस्ट से भेज दो। स्पीड पोस्ट हार्डली टेक्स 24 आवर्स टाइम टू रीच एनीवेयर इन इंडिया, मोस्टली कहीं बहुत ही रिमोट प्लेस पे होगा तो मैं नहीं कह सकती, पर मोस्टली इट टेक्स हार्डली 24 आवर्स। तो आप आज भी पोस्ट करते हो तो हमारे यहाँ पे कल या परसों मॉर्निंग तक पहुंच जाएगा। तो डू इट राइट नाउ। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, आई एम जस्ट आंसरिंग इट ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी स्टूडेंट, कि जिसने सारे डॉक्यूमेंट्स आकर के सबमिट करा दिया है, और सारे डॉक्यूमेंट जितने भी वहां लिस्टेड हैं और जो भी फाइल शेयर हुआ है वो सारा कुछ अगर आपने कर दिया है तो आपको कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ कॉमन मेल फॉर एवरीवन, ताकि किसी का कुछ भी रह गया हो तो ऐसा दिक्कत ना आए, तो इसलिए वो कॉमन मेल गया है सबके पास। अगर आपने सारे A to Z डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं या यहाँ पे सबमिट करा चुके हैं, देयर इज नो नीड टू सेंड इट अगेन। लेकिन वो हार्ड कॉपी में हमें ओरिजिनल सबमिट कराया है तो ही, अगर आपने नहीं कराया है तो यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। फोटो कॉपी दे रखी है, मैम कब तक कराना है? भाई मैम ने उसमें 6 तारीख तक का ही डेट दिया हुआ है, 6 तक का है वो। जो दिल्ली NCR वाले हैं वो तो आज से कल तक में आके सबमिट कराइए, क्लास के बाद आ जाइए। और जो बच्चे दूर वाले, ओरिजिनल है नहीं का क्या मतलब है? मैम अभी स्कूल से ही नहीं आए डॉक्यूमेंट्स हमारे, तो लीजिए स्कूल से। देखो तुम्हारा ओरिजिनल एक ही चाहिए, दैट इज द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहीं से आता नहीं है, स्कूल इश्यू करता है, ठीक है ना। तो जब जाओगे तो इश्यू करेगा ना, जाके पता कीजिए बेटा, तो जाके पता करो बेटा। हॉस्टल से क्यों आएगा भाई, स्कूल देता है, यू हैव टू गो एंड कलेक्ट। अरे मैम तो हॉस्टल में रहे मैम, तो स्कूल एक ही तो बात हुई, हॉस्टल स्कूल। हॉस्टल स्कूल इज स्कूल। स्कूल में जाके यू हैव टू टॉक टू सम टीचर ना, किसी का तो नंबर होगा, उनसे बात करो कि मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा उसके बिना। यूनिवर्सिटी ज्यादा टाइम नहीं देती है, 2 या 3 दिन की देती है, इस बार तो उसने पैंडेमिक की वजह से बहुत टाइम दे दिया है, ठीक है। उसके बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल, बोथ आर वी रिक्वायर्ड इन दी हार्ड कॉपी। बाकी तो मैं जेरोक्स भी करके लगा देती, कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। आई मीन प्रिंट आउट भी निकाल के लगा देती आप अगर मेल करते तो, लेकिन दैट दोज 2 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन दी हार्ड कॉपी ओनली, ओरिजिनल कॉपी। फाइन इनफ, सो आई एम स्टॉपिंग दैट डिस्कशन एज ऑफ नाउ। लेट अस मूव फर्दर। मेडिकल में क्या होना चाहिए? मेडिकल में जो आपको PDF अटैच करके भेजा गया है उसमें ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट।
उसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट, आपको सारे पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना है और सबको फिलअप करना है, ठीक है। और मेडिकल जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट है उसमें, दैट यू हैव टू गेट इट फिल्ड एंड साइंड बाय द एमबीबीएस डॉक्टर, एनी एमबीबीएस डॉक्टर, प्राइवेट गवर्नमेंट डजंट मैटर। मैम उसमें एक फॉर्म बीटेक का भी है। बीटेक का जो है वो केवल बीटेक नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स ऊपर लिखा हुआ है, तो जितनी इंफॉर्मेशन आपकी है वो आपको फिलअप करना है, राइट। जो आपके लिए ना हो उसको ब्लैंक छोड़ देना। ओके मैम। उसमें लिखा है कि पीसीएम में क्वालिफाई करना है, तो पीसीएम आपके लिए नहीं है, मे बी आप में से सभी कॉमर्स के हों या जो भी कॉमर्स के उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, इसमें सिद्धार्थ तुम्हारा कुछ मुझे याद है गैप ईयर का कुछ था या क्या था, किसी एक का गैप ईयर है, आई डोंट रिकॉल एज ऑफ नाउ। गैप ईयर था, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुराना नहीं चलेगा, यू हैव टू गेट इट नोट एंड उस कॉपी को भेजना है किसी नोटरी से, मतलब वो करा के भेजना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिनका भी गैप ईयर है। गैप ईयर का मतलब होता है कि जो 2020 में पास नहीं किए हैं उसके पहले पास किए हुए हैं, 19 के पास आउट है या 18 के पास आउट है, यू हैव टू सबमिट दी इधर द कॉपी ऑफ द copy signed by the gazetted officer और the notary, इन दोनों में से कोई कर सकते हो आप, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसको भेज रहे हो बाय पोस्ट, या बाय पोस्ट का मतलब स्पीड पोस्ट और कुरियर। आई एम नॉट एनी मोर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इट, आपको बस मैं फॉर्मल इनफॉर्मल समझाने के लिए बता रही थी। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर ही लेते हैं ताकि कोई पॉइंट रह ना रहा हो। ओके, so see, formal communication refers to the official communication which takes place following the chain of command in the organization, right? A chain of the command, you understand, some boss is there, he has given the command to tell something to the downward and that is being done. Or chain of command जहाँ पे यहाँ पे आपका आ रहा है, there are 4 directions of formal communication, so might be possible that is downward, upward, horizontal or diagonal. Advantages we have discussed: orderly flow of information, right? Identified sources means if you wanted to find out who has said this first, you can identify the source who has initiated that communication, you can find out that person. Authentic information, whatever you have got the information, that is the authentic one. जैसे कि सुगंध मैम ने आपके साथ शेयर किया है, अपनी ऑफिशियल आईडी से शेयर किया है, तो दैट इज द ऑथेंटिक वन, राइट। एक्सपेंसिव से यह मतलब है कि अगर ये तो अभी चलो ईमेल में कोई एक्सपेंस एसेस नहीं जा रहा है, बट जब आप बात करते हो कि जैसे हमने कहा कि आपको भेजना है स्पीड पोस्ट या कुरियर करना है, तो दैट इज द एक्सपेंस ना, सम एक्सपेंसेस देयर। मुझे यूनिवर्सिटी को कुछ भेजना है, तो अगर मैं ईमेल आज की डेट में भी दो वी हैव टेकन अप ईमेल एंड व्हाट्सएप एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन थिंग्स, मीडिया टू कम्युनिकेट विद द पीपल, बट स्टिल वी हैव टू सेंड द हार्ड कॉपी। अगर ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने से सारा काम हो गया था तो हार्ड कॉपी की क्या जरूरत थी, है ना। तो वी हैव टू सेंड द लेटर इन द हार्ड कॉपी, इन द फॉर्म ऑफ द हार्ड कॉपी टू द यूनिवर्सिटी, एंड देयर वी हैव टू if one person is going, so that is the expense, you have to travel, you are spending some cost over it, then the cost of the employee, that person who is going to submit that letter there in the university, so definitely it is having the cost. Then justification of the authority, if you are communicating something, you have to justify, that means on what basis I am telling this. As I said in the beginning, that if I am saying anything related to admission or anything else, what is under my domain, so if I am telling anything about it, so I have to take the authority of that. Yes, I have done it, I have said it, so I have to justify on the basis of what I am saying this, fine. Then answerability of actions, अगर कोई भी एक्शन आता है उसके अगेंस्ट, जैसे कि अभी मान लो कि आपसे मांगा गया, अगर आपसे नहीं कहा जाता कि डॉक्यूमेंट भेजिए और आपका बाई चांस किसी एक का भी एडमिशन कैंसिल हो जाता ऑन द बेसिस ऑफ दैट, तो कौन आंसरेबल होगा? कॉलेज आंसरेबल होगा कि आपने कैसे किया, जो आप बच्चे सबमिट नहीं कर पाए, ठीक है। तो व्हेन वी गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, इमीडिएटली आफ्टर दैट वी शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू सेंड दिस डॉक्यूमेंट्स, राइट। कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कंट्रोल द इंफॉर्मेशन टू बी स्प्रेड आउट। अगर आपको लगता है कि जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसा मीडिया में होता है कि कोई एक वीडियो आ गया किसी मिनिस्टर का, किसी का या किसी कॉर्पोरेट का ही, जो कि दिखाना नहीं था,
तो जब हालांकि वो फॉर्मल मैं नहीं कहूंगी, अगर किसी ने उसको ऐसे लिख किया या कुछ किया तो यू हैव द कंट्रोल, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इन दैट यू हैव द कंट्रोल टू स्टॉप दैट कम्युनिकेशन एट वन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जैसे कि मान लो आईपी यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिस निकाल दिया तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ गया, पर वो जब चाहे उसको रोक सकती है ना। कैसे रोकेगी? चलो आपने पढ़ लिया, डाउनलोड कर लिया, वट एवर इट इज, लेकिन वो इमीडिएटली वहां से रिमूव कर सकती है, क्योंकि उसने तो यही कहना ना कि मेरे साइड पे नहीं है। अगर आप दिखा रहे हो तो आपने कुछ मैनिपुलेट किया है, फाइन, तो यू हैव द कंट्रोल टू स्टॉप दैट कम्युनिकेशन एट वन पर्टिकुलर टाइम। कभी भी आप उसको स्टॉप कर सकते हो। एनी पॉइंट विच इज नॉट क्लियर इन दिस एडवांटेजेस? यस मैम, एक्सपेंसिव। ऑल्सो एक्सपेंसिव मैंने बताया था कि जब आप किसी चीज को, कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए आप, जैसे कि हमने बताया कि आप अभी डॉक्यूमेंट्स किसी को भेजना है, डॉक्यूमेंट्स को यहाँ लाने के लिए आपने ट्रैवल किया, ट्रैवलिंग कॉस्ट आपका ऐड हुआ है ना, ये वट एवर इट इज, तो वो आपका कॉस्ट में आ जाता है। सो दैट इज वाई इट इज एक्सपेंसिव। मान लो ये तुम्हारा, छोड़ो हटाओ एग्जाम्पल, मैं डीएसपीएसआर अगर मुझे यूनिवर्सिटी को कुछ भेजना है बाई हैंड ना जाकर के मैं स्पीड पोस्ट ही भेज रही हूँ, तो देयर इज अ कॉस्ट ना। स्पीड पोस्ट का कॉस्ट होता है, चाहे वो 20 रुपए 25 रुपए ही लगता हो, पर देयर इज अ कॉस्ट। लेकिन मैं एक फोन कॉल करके भी कह सकती थी, पर फोन कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कल को मना कर सकते हैं कि नहीं सीमा मैम ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, है ना। सो टू मेक इट फॉर्मल वी हैव टू, sometimes it becomes like expensive also. I hope it is clear. Yes, ma'am. Hello. Excuse me, ma'am. हाँ, next. Ma'am, Yes. but when we are talking about a company or an organization, how does it cost expensive? Means? मैम मतलब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंफॉर्मेशन फॉर्मली जा रही है तो फिर वो एक्सपेंसिव कैसे हुआ? वो तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। Within the organization you are saying? Yes, ma'am. जैसे कि मैं डीएसपीएसआर में कोई नोटिस नोटिफाई कर रही हूँ, Within जैसे the कि मान लो कि मैंने कोई एक नोटिस निकाला, ठीक है, डायरेक्टर सर ने कहा सीमा मैम ये एक नोटिस निकाल दीजिए जिसमें बच्चों को बताना है, ठीक है, तो मेरा जो टाइम जा रहा है उस टाइम की कोई कॉस्ट नहीं है क्या? उसको टाइप करने में मेरा कुछ तो टाइम लगेगा, यस और नो? यस मैम। तो उस टाइम को आप कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं करोगे? मेरे लिए मेरे आधे घंटे की कुछ वैल्यू तो होगी। मैं आपको 1 आवर का लेक्चर दे रही हूँ, उस 1 आवर की कुछ तो वैल्यू होगी ना। 8 आवर्स मुझे काम करना है, महीने के एंड में मुझे सैलरी मिलती है, तो 1 डे की कुछ तो सैलरी होगी, और 1 डे में 8 आवर्स है तो 8 आवर्स का कुछ तो मतलब आई मीन डिवाइडेड बाई लेट्स सपोज 1, अभी लेक्चर की बात कर रही हूँ, तो 1 आवर का कुछ तो हुआ। अगर उस नोटिस को बनाने में मेरा 5 से 10 मिनट भी जाता है तो 10 मिनट का कॉस्ट है या नहीं है? हेलो, जो भी पूछा हो। Yes, उस 10 मिनट का 10 मिनट तो लगेगा ना मिनिमम मुझे किसी भी नोटिस को ड्राफ्ट करने के लिए, तो उस 10 मिनट का कॉस्ट है ना, तो इट इज एक्सपेंसिव। जबकि मैं किसी को कह देती कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है जी पास ऑन कर दो, मान लो इंटरनल कम्युनिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, विद इन डीएसपीएसआर मुझे कुछ बात करनी है, तो हमारा डीएसपीएसआर का भी, जैसे आप लोग का क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे टीचर का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोग टाइम टेबल का एक ग्रुप है, उसके अलावा हमारा एक ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें चेयरमैन टू पीएन एवरीवन इज देयर। तो हम चाहते तो वहीं पे ना वो इन्फॉर्मेशन भेज दें, लेकिन वहां पे भी नोटिस रिटन में साइन होकर के डायरेक्टर का साइन होकर तब वहां पोस्ट होता है, ठीक है, ना कि सीधा बोल दिया कि ऐसे हो गया, क्योंकि दैट पर्सन हैज टू टेक द, मान लो मैं ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर मैं कुछ वहां पे पोस्ट कर दूं तो हु विल बी आंसरेबल? मी और डायरेक्टर सर भी होंगे, मैं भी होंगी। अगर डायरेक्टर सर ने परमिशन दिया है तो ही विल स्टैंडिंग विद मी कि हाँ मैंने मैम को कहा था करने के लिए, पर अगर डायरेक्टर सर ने नहीं कहा है और मैंने कुछ पोस्ट कर दिया तो आंसरेबिलिटी इज वन, और कॉस्ट इस तरह से आ रहा है, या आपने मान लो एक मैसेज ही टाइप कर रही हो उसका कुछ तो कॉस्ट होगा, यस और नो? यस मैम। आर यू गेटिंग इट? कॉस्ट मींस टाइम जो लग रहा है हमारा, अगर या इंटरनेट की जो भी फ्रैक्शन ऑफ जो उसमें गया हो मेरा चार्ज, आई मीन क्या बोलेंगे उसको, जितना भी एमबी वगैरह में लगा हो मेरा इंटरनेट का जो भी पॉइंट, तो कॉस्ट में देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट वे, ठीक है, ओके। लेकिन जो इनफॉर्मल में वो भी तो कॉस्ट भी होता होगा। एक मिनट सुनो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहती है ना करने के लिए, आप अपनी मर्जी से करते हो, आई विल कम टू दैट। एंड टाइम कंज्यूमिंग का मतलब है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को मान लो लोअर लेवल तक पहुंचने में अगर उसमें 6 पीपल आर इन्वॉल्व, जिसमें सबसे टॉप ने कहा कि आप अपने जूनियर को बता दो, जूनियर ने फिर उसको पास ऑन किया, आगे बताया,
फिर उसने उसको बताया, तो दैट इज टेकिंग टाइम, दैट हैज टू फॉलो सम नेटवर्क। उस नेटवर्क में जो टाइम जाता है, आप किसी को, जैसे कि मेरे 5वें बंदे को बताना है तो मैं सीधा मेरे ऑफिस में बैठता है, मैं बता दूं ना उसको। लेकिन अगर कुछ ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है तो दैट विल गो थ्रू दैट पाथ ओनली, so that is taking time while traveling that communication, right? Lack of personal touch, जैसे आप इनफॉर्मल में क्या होता है, आप जाके बोलते हो, किसी से बात करते हो तो ही अपनी बातें कह पाते हो। लेकिन यहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक नोटिस लिखा और भेज दिया किसी को और सारे लोगों ने पढ़ लिया, तो मैं सबसे मिलके भी तो कह सकती थी, पर मिलके नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, दैट इज रिक्वायर्ड द प्रूफ, तो प्रूफ के लिए मुझे लेटर लिखना है। कि अगर मैंने कम्युनिकेट किया ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, तो मुझे किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है ना, मैं अपने ऑफिस में बैठे हुए काम कर सकती हूँ, ठीक है। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि जो आपने कम्युनिकेट किया, जरूरी दो इट इज इन द रिटन फॉर्म, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज देयर, बट मे बी पॉसिबल कि जो मैं कहना चाहती थी आपने वो नहीं समझा, कुछ और इंटरप्रेट कर लिया उसको पढ़ के, ये भी पॉसिबिलिटी हो, उसके क्लियर कर लिया। तो पूछ, अभी आप क्लास में पूछ रहे हो, ये नहीं है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मीन्स कि अगर मैं किसी से कुछ कहने गई और उस नेक्स्ट पर्सन को समझ नहीं आया, तो वो मुझसे दोबारा पूछ लेगी कि हाँ मैम इसका क्या मतलब है। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में मैंने एक नोटिस भेज दिया, तो उस नोटिस को पर्सन किस तरह से पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, वो उसकी मर्जी है ना, हमने अब कम्युनिकेट कर दिया। तो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Please write yes or no in the chat box. Ma'am, or if you have हाँ, any आप issue वहां you से can बेटर लिख रहे हो। unmute excuse and me, mute. ma'am. Yes. हाँ, मैम एक्सपेंसिव अब मेरा एडवांटेज रिक्वेस्ट है कैसे कि हुआ मैम? वो तो सिर्फ कॉल से डिसएडवांटेज हुआ बात ना, करो, हमें हमारे यहाँ पे एक्सपेंसेस लग रहे हैं, हमारा नहीं, कम्युनिकेट मैंने कॉल करने में नहीं किया हमारे उनको। को एक्सपेंस करना पड़ रहा है, तो हमारे लिए तो फिर डिसएडवांटेज हुआ ना, वो एडवांटेज कैसे हो गया? एक बार पूछ लो, आप थोड़ा बात कर लो। Yes, your point is valid. I'll have to check it out. Though it is expensive, you can say that is a kind of characteristics of the formal communication, that it is expensive. I'll check it out. Fine. Who is लिमिटेशन हो speaking? गई है श्योर ना, ये मैम, तो श्योर मैम। लिमिटेशन। हाँ, so that is why it is disadvantage. That what she was saying. So either I can directly move it there or, लेकिन यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाह रहे हैं कि ये भी एक है कि एक्सपेंसिव होता है। I'll check it out and I'll come back to you, right? Whether I have to remove it from here or not, right? Fine enough. I don't know who is calling me again and again. Some student is there. I think Shubham Tyagi. I don't know what has happened to him. He is calling me. Any point? Any clarification? सिद्धार्थ शुभम, आपको जो डॉक्यूमेंट गया है, am I audible? In that document, one format is there of medical certificate that you have to do. You are fit, it's okay, but you have to show that. Yes. Anything else? Anything else? No, Fine. ma'am. So let us move to the next point, which is on the basis of direction of the message. अच्छा, उसके पहले ये है हमारा communication network. When we are talking in the communication, I mean we are sending some message, it is traveling in these networks. These are the chain or line. So here you can see A, B, C, D, E. So these are the people, right? 5 people are there in the organization, let's suppose, for the example. So if A has to say something, that will go to B, B will say that to C, C will forward to the D, D will forward to E. So it is following a chain. So that is why the name is chain or line network, right? It comes under only the, rather it comes under for informal communication as well. But generally it happens in the organization that one person is saying to the others, other is saying to the next. Here in the Y form, what is happening? Who is the main communicator? Can you say someone? Can you write it here? Who is communicating? From where communication is getting to start? Communication start कहाँ से हो रहा है? Ma'am, from A. From A? From B?
मैम ए एंड बी। कौन कम्युनिकेशन को स्टार्ट कौन कर रहे हैं यहाँ पे, पता लग रहा है क्या? मैम ए एंड बी मैम, उन दोनों के बीच में स्टार्ट हो रहा है। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है सी से। सी इज टेलिंग टू ए, C is telling to B, C is telling to D, and again D will be telling to E, and E will telling to the next person. So from here it will again become the chain वाला. ये जो है chain और line network, that will become after C. So C is the major person who is communicating, right? So that's why whom we are going to find out as a source. Source is C. जैसे यहाँ पे कौन है? A है. यहाँ पे C होगा. ठीक है? Again, who is the in the next one? Will? मैम ए। अच्छा यहाँ पे ए है मैम। कौन है? A. ए। A. So A is saying to D and A is individually saying to E. So A is the major source of the communication. And it, yes beta, हो गया A. Thank you so much everyone for participation. That's great to see. So it becomes like a wheel, है ना? Wheel का क्या मतलब? यहाँ जितने लोग होंगे, wheel में सारे spokes होते हैं ना? तो that is creating like a wheel, we can say. अब यहाँ पे आ जाओ, all channel or open, we have to say like this. So here what is happening, though it is a formal communication, the part of the formal communication, but what is happening? A is telling to B, A is telling to E, A is directly telling to C, A is directly telling to D. Similarly, other people, they are communicating to each one of them, है ना? वो किसी से भी बात कर सकता है, right? B is again informing the message to E, D, और B A को भी कह सकता है, B C को भी कह सकता है. So that is why it is known as all channel or open. But still it is not the part of the informal communication. It is the part of the formal communication only, right? क्योंकि आप यहाँ पे भी पकड़ सकते हो कि कौन स्टार्ट किया था, है ना? किसने कहा है पहली बार? Fine enough. Here come to the circle. Circle means what? That it is going to communicate, you have to make a circle, right? Like anybody, let's suppose A is starting the communication. So A will tell to E, A will tell to B, but to communicate with C or D, A has to take the help of E and B. They will say E को बोलेगा भाई D को भी बता देना, right? फिर ए बी को बोलेगा सी को भी बता देना. तो सी को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, पर किसके थ्रू मिल रहा है? बी के थ्रू मिल रहा है, राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग? टू कम्युनिकेट विद ई, ए हैज टू, लेट्स सपोज इट इज हियर डायरेक्ट, बट इट इज मेकिंग एंटायर सर्कल टू कंप्लीट द मैसेज, यू नो. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ सर्कल, राइट? इज दैट क्लियर ऑल द 5? मैम प्लीज एक्सप्लेन. मैम लास्ट के 2 वाले बता दो मैम, मेरा नेटवर्क चला गया बीच में एक बार. अच्छा, ए जो है, जो 4th वन है, ऑल चैनल और ओपन. इट इज लाइक ओपन क्यों बोलते हैं कि दिस इज ओपन मींस कि आप कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते हो. ए कैन कम्युनिकेट टू सी, ओह सॉरी, ए विल कम्युनिकेट टू सी, ए विल कम्युनिकेट टू डी, ए विल कम्युनिकेट टू ई, और ए कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट टू बी एज वेल. सिमिलरली B can also communicate to all the 4, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा था कि C B से बात कर रहा है, C D से बात कर रहा है, D will inform to E, right? C will inform to A. पर यहाँ पे आप किसी से भी बात कर सकते हो. तो this channel is open. जैसे जनरली ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि this kind of formal, you know, this kind of open network is there in the organization, कि आप किसी से भी बात कर सकते हो. ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता जो कहता है कि दूसरे डिपार्टमेंट में बिल्कुल जाना ही नहीं है, आपके लिए लिखा है दरवाजे पे नो एंट्री. इट्स नॉट लाइक दैट. सो वी हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन द ओपन चैनल, राइट? यस. और मैम सर्कल में यहाँ पे सर्कल में क्या होता है कि सर्कल में किसी भी एक पॉइंट को उठा लो. अगर आप ए को लेते हो या ई को ले लो, दूसरे तरीके से समझते हैं थोड़ा सा. ई को अगर बात करनी है, अपनी कोई एक बात पहुंचानी है, तो वो जो है संडे को भी, संडे ये संडे ओपन रहेगा. अगर ये बात ई को बतानी है, ए को, तो ई विल कम्युनिकेट टू ए, ई विल कम्युनिकेट टू डी डायरेक्टली, है ना? यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा वो. लेकिन सेम बात उसको बतानी है बी को भी, तो वो क्या कहेगा? ए जो भी है, भाई जरा इस बी को भी बता देना, तुम्हारे साथ ही बैठता है ना, या तुम्हारे साथ ही उसका डिपार्टमेंट है. और डी से भी कहेगा कि भाई सी को बता देना. तो ई ने अपनी बात ट्रेवल करा दी बी और सी के पास तक, पर उसने हेल्प लिया ए और
डी का। A सिमिलरली और D बी का। अगर बात कर रहा है, बी अगर ई से बात करनी है तो वो ए के थ्रू बात करेगा, बी को अगर डी से बात करनी है तो सी के थ्रू बात करेगा। जैसे कि होता है ऑफिसेस में, जैसे हमेशा होता है हम लोग के साथ कि मान लो कि मेरा जो अगर जो यहाँ पे आए हैं डीएसपी साथ में जिन्होंने आए हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि मेरा ऑफिस डायरेक्टर सर का ऑफिस साथ में है। तो किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है हम दोनों को अलग अलग से, तो कोई आ रहा होता है तो उससे कह देते हैं जो है कि भाई वहां पे जा रहे हो ना, डायरेक्टर सर को भी बता देना, सीमा मैम को भी बता देना। अब वो खुद तो उठ के नहीं आया, उसने किसी और से बोल दिया कि भाई दोनों को बता देना। या चलो ठीक है, ईपीबीएक्स के थ्रू फोन्स या आजकल तो व्हाट्सएप मोबाइल सबसे जुड़े हुए हम लोग सब कोई, तो तो व्हाट्सएप फोन पे एक भी मीडियम कहा हो जा गया। सकता है। हाँ मीडियम हो गया, लेकिन आपने किसी जैसे कि यहाँ पे देखो आप अभी ये हम लोग वर्चुअल लाइफ में अभी आए हैं ना बहुत ज्यादा वाला, तो उसको हम एकदम से नहीं ले सकते एग्जाम्पल में हमें पुराने वाले को रखना होगा कि हम मान लो थर्ड फ्लोर पे कोई टीचर बैठा है, राइट, उसने कोई इन्फॉर्मेशन डाउनवर्ड लो में जाना था, डायरेक्टर सर को बताना था, तो उसने अपने किसी कोई कोलेग आ रहा था ऑलरेडी डायरेक्टर सर के पास, तो उससे कहा, फैकल्टी रूम है हमारा सेकंड फ्लोर पे, वहां पे उसने टीचर से कहा कि भाई तुम नीचे जा रहे हो ना, डायरेक्टर सर को बता देना, ठीक है। अब उसने आके डायरेक्टर सर को बता दिया, तो उसने जो कम्युनिकेट किया किसके थ्रू किया, जो टीचर वहां पे आ रहा था, राइट, उसने डायरेक्ट नहीं कम्युनिकेट किया, उसके थ्रू किया, तो दैट बिकम्स द सर्कल। आप अपनी बात को पूरी करने के लिए एक आपका सर्कल बन जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? Someone is asking for Y network. मैम Y network, ओके। सो आप लोग बता दो, आप में से कोई, सारे को समझ आ गया था ना, सभी लोग यस कह रहे थे, आप में से कोई एक्सप्लेन करो प्लीज। आई थिंक सी, महक जिंदल हैज सेड, सो महक जिंदल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन द Y chain। महक जिंदल, मैम आई मैंने होप ही यू आर लिसनिंग। क्वेश्चन पूछा है भाई। आपने क्वेश्चन पीछे पूछा है और ऊपर आंसर भी दिया है कि आई थिंक सी। मैम So आई yes, वाज नॉट that is the right answer. It is the C. It is, you were not sure, but you were correct. So C Okay, ma'am. will initiate the communication here, and C will talk to B, C will talk to A, C will talk to D, and again D will inform to E. So from C to E, or if somebody is there like F or G, so that again from this part to the lower side, it will become like a chain. So Y is some part is like working as a chain, जैसे कि हमारा चेन वाला था, पर चेन जो स्टार्ट होता है वो सीधा चेन जैसे स्टार्ट होता है, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है ए से लेकर के ई तक। फाइन, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. okay, so Ma'am, that is all the channel. explanation written here. All Excuse channel, me, ma'am. anyone I can have a speak to doubt. anyone. Ma'am, Yes. it can be the informal. It can be the part of informal communication also. No. हाँ, इनफॉर्मल में भी ऐसा होता है, पर यहाँ पे आप उसको होल्ड कर सकते हो ना। मान लो कि डी ने कोई एक्शन ले लिया, ठीक है, बी ने कुछ बताया डी को और डी ने कुछ एक्शन ले लिया उसके ऊपर, तो डी से पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोलेगा ना मैंने बी ने मुझे कहा था ऐसा करने के लिए। आर यू गेटिंग इट? पर जब आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होते हो तो आप किसी का नाम भी नहीं लेते हो, कहते हो कि हमें कहीं से पता चला, किसी का नाम नहीं लेते हम, है ना। Okay, ma'am. ये ऐसा आएगा अभी, लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। So this is the informal communication. The second name is grapevine. It is also known as, yesterday evening I was reading something and there I came to know one new word, that is kinesic. So this is also known as kinesic, right? Communication, informal communication, it is having two names rather, grapevine, and grapevine is very much known word. Why it is saying like grapevine? Grapevine आपने देखा होगा कि जो grapes के जो होते हैं ना, जो उसमें कई सारे होते हैं ना, grapes का जो बंच होता है पूरा, तो उसमें एक से स्टार्ट होता है और कई सारे बनते जाते हैं, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे कहाँ से एक जगह से कम्युनिकेट होता है और स्प्रेड होकर के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाता है, राइट, कोई भी बात, तो दैट बिकम्स अ शेप लाइक अ grapevine. That's why it is said the name is given like grapevine, right? Fine enough. So the network or pathway of informal communication is known as a grapevine. फीचर्स क्या है? अच्छा, वहां पे यहाँ पे भी फीचर्स लिखा है, वहां पे भी फीचर्स एंड एडवांटेजेस लिखना चाहिए था मुझे। So features are it transmits information in every direction throughout the organization. कहीं से भी शुरू होके कहीं भी पहुंच सकता है, right? Sometimes it happens, you know, in the organization that कई बातें होती है लोअर लेवल पे जो मुझे नहीं पता चलता ऑर्गेनाइजेशन में होके, मुझे कहाँ से पता चलता, पता है मेरे हस्बैंड से। अब आप बोलोगे मैम आपके हस्बैंड का क्या लेना देना ऑर्गेनाइजेशन से,
वो ये लेना देना है कि मेरा ड्राइवर आता है, वो पूरे रास्ते उनसे बात करता जाता है और जितना मेरे कॉलेज में कुछ हुआ रहेगा उनसे बताता है। तो कई ऐसी बातें होती है जो मुझे कॉलेज में रह के नहीं पता चलता, मुझे हस्बैंड से पता चलता है। अच्छा ऐसा हुआ है कुछ, आई मीन जस्ट इमेजिन दैट इज द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कहते तुम करते क्या, पूरे दिन कॉलेज में रहते हो तुम्हें पता ही नहीं चलता। हमने कहा नहीं, मैं इन फालतू की चीजों में नहीं रहती, मुझे जो काम करना है मैं अपने काम से काम रखती हूँ, दैट्स इट। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये होता है कि आपको किसी और से पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है, तो दैट मे बी द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। Khair, we are talking about the organization, so maybe possible anybody else has started that communication, right? Transmits information rapidly. आप rapidly का क्या मतलब है कि आप वहां पे एक फॉलो कर रहे हो ना, एक चेन को फॉलो कर रहे हो। तो जैसे ए जो है वो बी को बता, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, तो दैट इज टेकिंग द टाइम। बट अगर जैसे कि सर्कल वाला जो सर्कल नहीं, जो हमारा ऑल चैनल ओपन था, ऑफिस सेटअप देखोगे तो मेरे ऑफिस में एंड द वन ओनली हुई सिटिंग हियर, राइट। और कई ऑफिस जैसे नहीं होती है बीकॉम ऑनर्स की, तो मैं मेरी और वो वहां पे बैठती हैं, तो वहां पे जो डिस्कशंस हो रहा है कई बार वहां से मुझे उनके थ्रू पता चल सकता है, या किसी और टीचर के थ्रू जिनसे मेरा काम होता है, मेरी बातचीत होती है, उनके थ्रू पता चल रहा है। तो इट इज गोइंग टू स्प्रेड आउट वेरी मच फास्ट, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग विद द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Grapevine is selective with regard to the person who receives the information. अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि इट इज सेलेक्टिव, मतलब हो सकता है सुगंध में मुझे बताए या ना बताए, उनकी चॉइस है ना। हो सकता है वो मुझे बताए या ना बताए। कोई पर्सन मुझे कोई बात बता रहा है तो कोई उसके पीछे रीजन, उसका मेरे से इतना अच्छा है कि वो मुझे बता रहा है, अदरवाइज वो मुझे नहीं बताएगा, फाइन। तो ये सिलेक्टिव होता है, मेरी मर्जी है कि मैं अपनी बात किसी और से बताऊं या ना बताऊं, फाइन। It can occur off the job. Even what I would say, it can occur off the job. नहीं, it happens always in off the job. जब आप कहीं जा रहे हो, साथ में घर जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए निकले हैं, चलो बाहर बात कर लेते हैं, या हम लंच ब्रेक में हैं, चलो आपस में बातें कर रहे हैं, तो हमने बात कर ली। कोई भी ऑफिशियल सेटअप में आप ग्रेपवाइन जो है ना, जो इस तरह की चीजें हैं वो नहीं फैलता है कि आप ऑफिशियल सेटअप में तो बात ही नहीं कर सकते ना, फालतू की बात ही नहीं कर सकते। आप कहाँ पे ऐसे बातें करते हैं, गॉसिप कहाँ करते हैं, जनरली गॉसिप वर्ड भी यूज होता है, वो कहाँ यूज होता है कि आप जो है आप जब फ्री टाइम होता है आपके पास, चाहे वो स्पोर्ट्स का टाइम ले लो, चाहे आप लंच का टाइम ले लो, या जब मॉर्निंग में आ रहे होते हो, या ट्रैवलिंग टाइम ले लो, उस टाइम पे ही हम लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। ग्रेपवाइन इज बेस्ड ऑन पीपल रादर देन द टास्क। जैसे किसी ने कहा था, इट इज फॉर्मल इज टास्क ओरिएंटेड एंड इनफॉर्मल इज पीपल ओरिएंटेड। तो आपने बिल्कुल सही कहा था, दिस इज बेस्ड ऑन पीपल नॉट द टास्क। उसका काम से कोई लेना देना नहीं है, किसी की भी बात किसी के तक पहुंचाते हो। नारद बाबा थे ना जो भगवान जी लोग के उसमें, वो नारद बाबा भी वही है, वो यही काम करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें वहां, उनसे कोई नहीं कह रहा है कि आप अपनी बातें इधर से उधर कीजिए, ठीक है, पर वो करते रहते थे। तो सिमिलरली दैट पर्सन हैज नथिंग टू डू विद दैट टास्क। वो मेरे पास जो भी है टास्क, मैं अपनी कोई भी बात किसी का पता चला रही, तुम्हें पता है ऐसा हुआ है, so that has nothing to do with the task. I'm just informing on the basis of the people. Why? Because I am selecting that person to say something. Grapevine does not follow the fixed pattern. इसका कोई अपना कोई fixed pattern नहीं होता है, वो किसी भी हमें एक तरह से ओपन चैनल हो गया, ओपन चैनल। बट ओपन चैनल में जैसे देखो, देयर इज अ डिफरेंस, अभी आएगा देखना। ओपन चैनल में क्या होता है कि आप फॉर्मल है ना, तो मान लो कि मैं किसी से भी कुछ कहूंगी, जैसे ले सपोज कि एक पेन को मैंने बोला कि मेरे लिए बाहर से कुछ ला के दो, ठीक है। मान लो मुझे भूख लगी, मैंने कहा कि बाहर से कुछ खरीद के ले आओ। अभी जैसे कि कैंटीन, पैंडेमिक में कैंटीन वगैरह सारा बंद चल रहा है, तो मैंने अगर उसको बाहर भेजा और मान लो कि वहां से वो आ रहे हैं, डायरेक्टर सर उसको ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिले, डायरेक्टर सर नहीं मिले, तो मैंने उनसे तो परमिशन लिया नहीं, मैं तो सीधा पे उनको बोल दिया कि तू जाके मेरे लिए सामान ला दे, ठीक है। अच्छा, वो जब आ रहा है तो उससे पूछा गया कि बेटा तू कैसे गया बाहर, गेट के बाहर क्यों गया, तो किसका नाम लेगा, वो मेरा नाम लेगा ना, एंड आई हैव टू से यस मैंने भेजा है। तो दैट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन वो वही पर्सन, वही बंदा, पियून, अगर मेरा उससे बड़ा अच्छा रिलेशन है, मैं उसका ध्यान रखती हूँ, उसको कभी कोई जरूरत पड़ी मैंने हेल्प कर दिया, सारी चीजें, तो हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है।
और फिर वो मेरे लिए काम कर रहा है, तो वो क्या कहेगा कि सर मेरे को ना ऐसे ही मैं गया था बाहर तक, वो मेरा नाम नहीं लेगा, वो कहेगा ऐसे ही गया था बाहर तक, काम सेम हुआ है लेकिन वो मेरा नाम नहीं लेगा, नाम नहीं लिया तो किसने कहाँ भेजा वो पता नहीं चला ना। आर यू गेटिंग इट? चलो फॉर्मल डिस्कस करेंगे, देन विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो ये जो सिंगल स्टैंड नेटवर्क आ रहा है वो तो यही आ रहा है कि एक से पर्सन से दूसरे के पर्सन तक जा रहा है, ठीक है, एक पर्सन दूसरे को इन्फॉर्म कर रहा है। पर आप यहाँ पे क्या होता है, देखो सबसे बड़ी चीज है जो अभी मैं बता रही थी पेन वाले एग्जांपल से, कि वहां पे कोई किसी का नाम नहीं लेता ना भाई, कि मुझे कहाँ से, जैसे कि क्लास में आप लोगों ने भी किया होगा स्कूल टाइम पे भी, अभी तो ऑनलाइन क्लास में अकेले अकेले बैठे हो, क्लास में होता है ना कि मतलब किसी ने कुछ बोला, अगर टीचर ने कहा किसने बोला है तो कोई बोलता ही नहीं, सारे एक साथ हो जाते हो, कोई बोलता ही नहीं कि किसने क्या बोला है, राइट। तो दैट इज हाउ इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि आपने कुछ कहा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। यहाँ पे ये स्टैंड, ये जा रहा है सिंगल स्टैंड नेटवर्क, एक पर्सन दूसरे को बता रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, लेकिन ये सिंगल स्टैंड है। लेकिन जब इनसे पूछा जाए ना, बॉस पूछ ले कि भैया ये बात किसने कहा था, तुम्हें किसने कहा था, अगर मान लो कि बॉस कहीं पे यहाँ पे बैठा है, ठीक है, मान लो एक एग्जाम्पल, बॉस यहाँ बैठा है, उसके पास ये मैसेज पहुंचा, तो वो पूछेगा, इससे पूछेगा ना कि तुम्हें ये कहाँ से पता चला, तो वो ये नहीं कहेगा मुझे इससे पता चला, कहेगा मुझे नहीं पता, मुझे पता चला। तो किसी का नाम नहीं लेता कोई, इसमें सबसे बड़ी जो खासियत होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। लेकिन बॉस को भी पता रहता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे गॉसिप वर्ड मैंने यूज किया था। गॉसिप नेटवर्क क्या, एक ही बंदा गॉसिप दिखाता है ना कि इस तरह से बोल रहे होते हैं, अरे सुना है, पता है, ऐसे चलता है, ऐसे हुआ है, कुछ हो जाए ऊपर नीचे कुछ भी, तो दे विल से लाइक दिस, कि अपनी बिल्कुल कि किसी को पता ना चले, उसको हमने बता भी दिया। तो ये यहाँ पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बता रहे, जस्ट लाइक विल का देखा था हमने, तो जस्ट लाइक दैट इट इज वर्किंग, बट इट इज अ काइंड ऑफ गॉसिप। गॉसिप मीन्स कि वो इसके साथ जितने लोग जुड़े होंगे, ये जैसे मान लो इससे सेंटर पॉइंट है, सेंटर ने इसको बोला, सेंटर ने इसको बोला, यहाँ सब जगह बताया उसने, अब ये पर्सन का भी तो इस तरह का एक सर्कल बनेगा ना, समझ आ रहा है, इस पर्सन का भी इस तरह का एक नेटवर्क होगा ना, इसके भी तो 5 लोग जुड़े होंगे, तो वो आगे उसको बताएगा, तो दैट बिकम्स द गॉसिप नेटवर्क। हम गॉसिप लीड्स टू रूमर्स। हाँ, गॉसिप लीड्स टू रूमर, यस। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए, उसकी तह तक जानी चाहिए, ऐसे ही नहीं डिसीजन ले लेना चाहिए। एज व्हाई इट इज नेसेसरी, बाय द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कि आपको ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि एज अ मैनेजर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात पे ध्यान दे करके लोगे डिसीजन, या फॉर्मल कम्युनिकेशन के। फॉर्मल पे हमें ध्यान देना है, इनफॉर्मल पे नहीं देना। पर क्या इनफॉर्मल को हम बिल्कुल रोल आउट कर देंगे, बिल्कुल इग्नोर कर देंगे? नहीं। वो कहते हैं ना कि धुआं दिख रहा है तो आग तो होगी, दैट मीन्स कि कुछ रिमर भी है, तो उस रिमर के नीचे कुछ तो सच्चाई होगी ना। तो एज अ मैनेजर यू हैव टू गो अप टू दैट लेवल कि ये बातें कहाँ से उठ के आ रही है, उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। यू हैव टू टेक दी बेनिफिट्स ऑफ बोथ द कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, राइट। अब ये एक आता है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी का मतलब पता है आप लोगों को? इसका मतलब होता है कि जो है प्रोबेबिलिटी है कि इस पर्सन ने इसको बताया, इसने इसको बताया, प्रोबेबिलिटी ये भी है कि इसने इसको भी बताया होगा। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि चांसेस ऑफ अकरेंस, कि चांसेस आर हाई कि इसी ने इसको बताया, इसने इसको बताया होगा, इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, ये कोई अलग बैठा है, इस नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं था, but probability is high that this person has also come to know about this kind of any kind of rumor or information through this person, क्योंकि इसी ने स्टार्ट किया था, इसने स्टार्ट किया और इसने सबको बताया है। that is known as probability network। क्लस्टर का मतलब होता है, क्लस्टर का मीनिंग ही होता है ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। जहां पे भी क्लस्टर यूज होता है देयर इज सम ग्रुप। तो क्लस्टर का, लेट्स सपोज कि इसका ये क्लस्टर था, इसने इन 3 लोगों को बताया, इनमें से किसी का क्लस्टर यहाँ भी हो सकता है, वो इनको बता सकता है, इनका अपना 5-6 लोगों का क्लस्टर होगा, ग्रुप होगा जो इनको बताएंगे, और इस तरह से ही हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन काम करता है, ठीक है। जो कहीं एक जगह से उठता है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाता है, राइट। सो यस, दैट इज नोन एज रूमर। मैम तो मैम वो प्रोबेबिलिटी और मैम क्लस्टर सेम नहीं होगा एक बारी को? नहीं, प्रोबेबिलिटी में है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस पर्सन ने इसको बताया, पर यहाँ पे ये हाई नहीं है कि इसी ने इसको बताया है, क्लस्टर है, ये इनका कोई ग्रुप होगा जिन्होंने इनको बताया। यहाँ पे पढ़ो, अंडर दिस कम्युनिकेशन Ma'am, so basically it is unknown who is communicating to whom. दैट इज व्हाट इनफॉर्मल में आप पकड़ नहीं सकते कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। एक सेकंड के लिए यहाँ देखो, यहाँ पे अगर ये इनका अपना एक ग्रुप था 10 लोगों का, ये सारे जगह फैल गया,
ये स्टार्ट कहाँ से हुआ कैसे पता चलेगा? यहीं से स्टार्ट हुआ है ये कहना बहुत मुश्किल होगा, है ना? तो र्यूमर्स में यही प्रॉब्लम होती है कि आप ऑथेंटिक सोर्स, जो हम फॉर्मल में हमने कहा था कि क्या सोर्स पता पता मैम इसका चलता भी है, कोई और ग्रुप हो। हाँ वो कहीं कहीं से भी पता चल रहा है। तो आपको किसी का पता करना, ये वायरल होता है ना, वायरल होता है कहाँ से वायरल हुआ ये ढूंढना बहुत जैसे मुश्किल हो जाती है चीजें, उस तरीके से आता है कि जो ऑथेंटिक सोर्स है, एक ही वीडियो हर कोई शेयर कर रहा होता है ना? तो एग्जैक्टली वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, दो इट इज लाइक फेसबुक काइंड ऑफ थिंग और जो ट्विटर वगैरह पे होता है वो तो फिर भी आप पता कर सकते हो। और मान लो मेन पर्सन ने डिलीट कर दिया, तो आप कैसे पता कर चलाओगे कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो दैट इज वाई इट इज नोन एज वायरल ऑल्सो। वायरल ना कि मतलब जहाँ पे आप ऑथेंटिक सोर्स का पता ही नहीं कर सकते कि चला कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो सिमिलरली ये आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है, राइट? टाइम इज अबाउट टू ओवर। आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से, और आई होप सबने अटेंडेंस मार्क कर दिया था। आज फर्स्ट डे था, आज मैंने जिसने लेट भी लगाया होगा आज का मैं कर दूंगी, पर आज से क्लास में, मेरी क्लास में स्पेशली जब भी लेक्चर है यू हैव टू ज्वाइन बिफोर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, और जो लेक्चर का टाइम है उसके विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपको अपना अटेंडेंस मार्क करना है। उस 10 मिनट्स के बाद जिनके भी अटेंडेंस होंगे वो मैं कंसीडर नहीं करूंगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अटेंडेंस भी लगा रहे हो और टाइम से लगा रहे हो, और साथ में जो है पूरी क्लास में रहना है। ये नहीं कि वहां पे क्लास अटेंड किया और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो रह गया इसको प्लीज पढ़ के आइए। मैम मेरी अटेंडेंस नहीं लगी मैम। मिनट्स लेट आया। लिंक दोबारा कोई क्यों नहीं लगी? हमने तो लिंक भेजा था ना मैम। आप लोग लेट ज्वाइन किए हो, बहुत बच्चे 11:31 के बाद आए हैं। आई हैव सीन मैम इसमें सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं और उनको डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, वो जो भेजे हैं मैम ने। डॉक्यूमेंट जिन्होंने हार्ड कॉपी में सब कुछ A to Z 100% आपका कंप्लीट है जितना मैम ने लिखा है। जो PDF उन्होंने शेयर किया है वो भी ओपन करके देख लो। अगर सब कुछ शेयर कर दिया है तो देयर इज नो नीड। अगर कुछ भी बाकी है तो यू हैव टू डू इट, नॉट ऑल, जो बाकी है जो रिमेनिंग है वो करना है। वो हार्ड कॉपी जाके देनी है कॉलेज में। हाँ जी, हाँ जी। ओके और जो लोग आ नहीं सकते, दूर हैं दिल्ली NCR वाले, प्लीज आकर के कीजिए ताकि कल तक हमारे हाथ में आ जाए। जो बाहर बैठे हैं, दिल्ली से बाहर बैठे हैं, प्लीज आप लोग जो है स्पीड पोस्ट से भेजिए और हार्ड कॉपी भेजना होगा। देयर इज नो एक्सक्यूज, अदरवाइज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एडमिशन। एक्सक्यूज मी मैम, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी मांगी है, हमें नहीं चाहिए। हाँ जी बोलो। मैम मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट किए हुए हैं A to Z, जो अभी एनेक्स्टर्स आए हैं वो भी सारे सबमिटेड है। बस मेरी मॉम की फोटो नहीं दी मैंने, तो वो देने जाना पड़ेगा। हाँ जी ओके मैम। Ma'am, will you explain expensive point in next class? क्या? Ma'am, will you explain expensive point from formal communication in next class? Yes, that is a kind of feature and advantages. So that is a kind of feature you can say. मैम So there is no need to explain. I couldn't recognize why it is an तुम advantage. उसको डिसएडवांटेज में डाल देंगे, but that is part of the feature also, right? कि चलो ठीक है, डिसएडवांटेज में डाल देंगे, ठीक है? There is no need to discuss on it. मैम Okay, ma'am. मैम कल मैंने एक डाउट किया था मैम इंटरडिसिप्लिनरी का, तो मैम आपने तो आपने क्या आंसर, आप ही ने पढ़ना था, क्या आंसर है उसका? मैंने पता करा कि मैम इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि मैम एक बंच ऑफ नॉलेज होने, मतलब एक ही टॉपिक की नॉलेज नहीं मैम, कई सारे टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए मैम बात करते समय। हाँ जी, हाँ जी, यस। हमने यही समझाने की कोशिश की थी कि आपका पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, ये सब कुछ पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से बात कर सकते हो। और मैम कम्युनिकेशन इज कंसेप्चुअल का मतलब मैंने ढूंढा है कि मैम जो मैम जिस तरीके का माहौल है मैम उस तरह की बातें की जानी चाहिए। बिल्कुल कॉन्टेक्सचुअल, यस, कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। ट्रू कि बॉस का मूड अच्छा है या बुरा है, मैम बुरा है तो मैम अच्छी अच्छी बातें नहीं, करो। वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कॉन्टेक्सचुअल का मतलब होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक्सरसाइज का, कि अगर आपने एक्सरसाइज बोला तो वहां पे एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हो? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है वहां पे क्या चल रहा है उसके हिसाब से, बॉस के मूड का नहीं। और बॉस के मूड को जो आप समझ रहे हो वो साइकोलॉजी हो गया, कि बॉस का मूड खराब है, अभी नहीं जाना है, ठीक है? अभी जाऊंगा तो मान लो कि आपको छुट्टी चाहिए थी और आप बॉस बिगड़ा हुआ है कि काम नहीं पूरा हुआ है, और आप उस समय छुट्टी का एप्लीकेशन लेके जाओगे तो फाड़ के रख देगा ना एप्लीकेशन आपका। तो इट्स बेटर नॉट टू गो एट दैट टाइम, है ना? आप अपना जो कम्युनिकेट करने जा रहे हो कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, तो बेकार हो गया, तो एप्लीकेशन ही फाड़ के फेंक देगा। तो ये है साइकोलॉजी। जो कॉन्टेक्सचुअल है कि कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। अगर मान लो मीटिंग में बात चल रही है एडमिशन की और मैं उठा के ले आऊं
बात जो है जो हमारा गेस्ट लेक्चर होने वाला है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता ना। अच्छा, Yes, एक ma'am, चीज okay. मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, आई होप कि बहुत लोग चले गए हैं ऑलरेडी यहाँ से अभी। ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है अपना 9-10 जनवरी को, तो इसके लिए जो है आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। और मैं वैसे तो सिप्रा मैम ने काफी कुछ बताया था उस दिन, तो मैं चाह रही थी आज की क्लास में डिस्कस करना, पर मेरी उनसे बात नहीं हो पाई थी, इस वजह से जो है मैं बात नहीं की। तो प्लीज बी रेडी, जो है मेंटली रेडी रहो कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। 9th और 10th जनवरी को है। 10th दो इट इज संडे, बट इट इज इन द ऑनलाइन मोड ओनली, तो यू ऑल आर सपोज टू पार्टिसिपेट। मेरी क्लास में जहां मैं पढ़ाती हूँ रिकॉर्ड है 100% पार्टिसिपेशन का, तो मेरा रिकॉर्ड खराब मत करिएगा आप लोग। जो है आप ओके सभी मैम। पार्टिसिपेट मैम कीजिएगा। 9-10 को क्या है? ओके मैम। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपको बताया जाता रहा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है हमारे यहाँ पे, Yes, ma'am. दैट इज एन एनुअल फीचर ऑफ DSPSR। तो हर साल 4th-5th जनवरी को होता था, इस बार हमने डेट एक्सटेंड किया था, 9-10 जनवरी को है और 9-10 को है, लेकिन ये ऑनलाइन फॉर्म में है, ऑफलाइन नहीं है। तो आपको कहीं जाने या आने की जरूरत नहीं है, आपको घर में बैठे जैसे क्लासेस अटेंड कर रहे हो वैसे वो अटेंड करना है। तो मैं कोशिश करूंगी आज ग्रुप पे मैं ही शेयर कर दूं कि जो है कैसे क्या करना है। मैंने सोचा था, एक्चुअली मैम आए नहीं थे तब तक और मैं यहाँ बैठी थी, तो फिर मैं जा नहीं पाई पूछने के लिए। तो अब जस्ट इमेजिन दैट इज द पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकती, है ना। दो आई नो एवरीथिंग बट आई कैन नॉट कम्युनिकेट अंटिल एंड अनलेस आई एम गेटिंग सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, राइट। तो ये Yes, होता ma'am. है, ये डिफरेंस हो जाता है कि मैं बोल सकती हूँ पर मैं बोल नहीं रही हूँ, राइट। Yes, ma'am. हम स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, आप